Good evening, class. In last video, we have completed most of the portions of chapter 6 and the chapter was molecular basis of inheritance. Okay, so in last video, we have discussed the features of central dogma, how the central dogma are generally doing the process of protein and mRNA. Okay, so in this, there is a greater role is playing by the DNA molecules, and that time DNA plays as a transcription process to complete to form RNA, and after that RNA also do the reverse process, and that is called RNA transcriptase. Okay, so in this we have seen that after the completion of that central dogma, RNA further makes the protein molecules. So depending upon the natures of RNA is a generally single nucleotide structures, and it is also made up of three different types of substance: phosphate, sugar, and nitrogenous base. Okay, so in nitrogenous base DNA and RNA, we have discussed that uracil is present in the place of thymines, and that was the major difference between DNA and RNA. So we have studied so many times in 11th class also. So depending upon the nature of ribose sugar, it is a single stranded, that's why they are called as ribose nucleic acid, and mostly it is a single helical structure. But comparison than DNA is double helical structure, and that model was proposed by Watson and Crick also. Okay, so DNA act as also a genetic material we have seen, and RNA also act as a genetic material in plant section also, and protein is not. Why? Because we have seen experiment of Messelson and Stoll and semi-conservative mode of replication. So many experiment we have done, and we got the result that DNA act as a genetic material in most of the organisms also. Okay, so depending upon the nature of RNA act as a three types. RNA जो है तीन तरह के रोल प्ले करते हैं. Generally, RNA has three different types. The first one is mRNA, that is called messenger RNA. Second, that is called RNA means ribosomal RNA, and third one is transfer RNA. It means transfer RNA something which are generally transferring from one place to another. So messenger RNA का काम होता है, suppose जब RNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, suppose जब RNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, this process is called translation. We have studied that time RNA also conveys the message from the protein molecules as a source of मैसेंजर. तो उस टाइम पे जो मैसेज पहुंचता है प्रोटीन के पास, ठीक है, तो वो मैसेज जो है जनरली एमआरएनए ही पहुंचाते हैं, एंड इट हैज अ वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ लाइफ स्पैन. इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत छोटी होती है, बहुत कम होते हैं, ठीक है, इनके लाइफ स्पैन. और मोस्टली राइबोसोमल आरएनए, वेयर राइबोसोम्स वी नो दैट इज कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, जहां पे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है. सो मोस्टली राइबोसोमल आरएनए मींस वेयर जनरली प्रोटीन कैन सिंथेसाइज, जहां पे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, जहां पे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन होते हैं उनके, दैट इज कॉल्ड आरएनए, जिसे हम आरएनए कहते हैं. एंड एट लास्ट प्रोसेस ट्रांसफर आरएनए. ट्रांसफर आरएनए का मतलब होता है जो प्रोटीन ट्रांसफर, जो अमीनो एसिड, जनरली वी नो दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर देयर. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, जो अमीनो एसिड्स, ठीक है, ये सब अमीनो एसिड्स हैं. These all are the amino acids. ये सब अमीनो एसिड्स हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन, जैसे धीरे धीरे अमीनो एसिड्स और ऐड होते जाते हैं, ये पूरा का पूरा जो बॉन्ड होता है ये पॉलीपेप्टाइड कहलाता है, ठीक है. सो इसके आगे पॉली लग जाता है, सो दैट इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड. सो अमीनो एसिड इज द मेन कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ प्रोटीन. अमीनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन के सबसे इंपॉर्टेंट मेन कंस्टिट्यूएंट्स मटेरियल्स होते हैं. विदाउट अमीनो एसिड प्रोटीन कैन नॉट बी सिंथेसाइज. सो अमीनो एसिड जो होते हैं ट्रांसफर करने का काम जो है टीआरएनए का होता है, जो कि राइबोसोमल एक्ट तक लाता है, और जनरली यही पूरा का पूरा मैसेज भी ट्रांसफर करने का काम करता है, ताकि प्रोटीन का सिंथेसाइज राइबोसोमल एक्ट में बहुत अच्छे से हो जाए. एंड राइबोसोम्स आल्सो एक्ट एज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू जनरेट और टू सिंथेसाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है. सो इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, विच आर जनरली फाउंड इन द राइबोसोम सेक्शन, जो कि राइबोसोम सेक्शंस में अवेलेबल है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ आरएनए, बिकॉज वी हैव आल्सो स्टडीड इन क्लास 11th में भी हमने डिस्कस किया. After that, we are going to discuss that genetic code. What is the meaning of genetic code? Genetic code is not so important part for your board exams, but further it is given in your book, and sometimes the codes may be asked that AUG code के बारे में कभी कभार पूछ देते हैं, so we have to discuss. So genetic code means
DNA is called tap having a coded hereditary material or information. As we know that the different types of DNA parts, suppose this is the double helical structures, ये DNA के helical structure है, so in this the beats like genetic information are there, तो यहाँ पे genetic information होता है, तो जो genetic information होता है which are generally fitted in a coded manner, इनमें जो genetic information होते हैं वो coded sequence में होते हैं, ठीक है, coded sequence में होते हैं, जिस कारण से कोडेड सीक्वेंस में होने के कारण इसे हम हेरिडिटरी मटेरियल का इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज DNA carried lots of hereditary information inside them and it passes through generation to generation, जो कि generation by generation क्या होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। That all process is done by genetic code। इनके जो बैंड होते हैं, whether it is single strand या double strand, वो पूरे के पूरे जो बैंड होते हैं, it is already coded with the genetic information। That's why genetic code is most important। genetic code क्या होते हैं, किसी भी DNA और RNA के साथ अटैच होकर उस पर कोडिंग करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, और वो इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ऑफस्प्रिंग से फर्दर सब ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन अदर वेज वी नो दैट डीएनए एंड आरएनए स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए एंड आरएनए both are genetic material, so they can store genetic information and a set of 3 nucleotides। तो इनमें जो इंफॉर्मेशन कोडिंग होती है वो जनरली 3 सेट में होती है, ठीक है। 3 सेट में इनके पास कोडिंग की सीक्वेंस होती है। अगर इसको हम अच्छे से समझेंगे, सो हियर 3 अमीनो एसिड्स के एक ग्रुप बनता है, ठीक है। इस ग्रुप को हम कोडॉन के नाम से जानते हैं। 3 अमीनो एसिड्स, ठीक है, 3 अमीनो एसिड्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल ग्रुप एंड सिंगल ग्रुप इज कॉल्ड कोडॉन। उस सिंगल ग्रुप को हम लोग कोडॉन कहते हैं, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दिस टाइप ऑफ जनरली कोडॉन्स इज आल्सो यूज्ड एज अ जेनेटिक मटेरियल, बट इट इज ऑलवेज इन ट्रिपलेट फॉर्म। ये हमेशा जो है कोड वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होंगे, ठीक है। AUG है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे C आ जाएगा, ये फोर्थ यानी टेट्रा के फॉर्म में नहीं होते, ऑलवेज दे आर फाउंड इन अ ट्रिपलेट फॉर्म। ये हमेशा आपको ट्रिपलेट के फॉर्म में ही मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड जेनेटिक कोड, जिसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं, विच आर जनरली फाउंड इन DNA एंड RNA एंड कंबाइनिंग लॉट्स ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इनसाइड देम एंड व्हेन इट पासेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इट इज जनरली एप्लीकेबल, ठीक है। ये सारी चीजें उसमें होती है। अब हम बात करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के अलावा कुछ जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड? अगर हम बात करते हैं जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी, फर्स्टली दे आर मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, यानी 3 अमीनो एसिड्स के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से मिलते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रिपलेट। इसलिए हम इन्हें ट्रिपलेट कहते हैं, क्योंकि ये 3 फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है। ये 4 नंबर पे नहीं होते, ऑलवेज ये 3 के फॉर्म में होते हैं। इनका जो कोडिंग होता है दैट इज कॉल्ड ट्रिपलेट, जिसे हम ट्रिपलेट कहते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर इज नो एनी पंक्चुएशन साइन, कॉमा इनमें नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम AUG को A, U, G हम मेंशन कर सकते हैं। सो देयर इज नॉट एनी कॉमा फंक्शन, यहाँ पे कॉमा का कोई भी यूज नहीं होता है। सो दैट इज कॉल्ड विदाउट कॉमा। ये प्रॉपर लिखे रहते हैं, कॉमा नहीं होता है इनमें। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन ओवरलैपिंग। ऐसा नहीं है कि एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ है तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे भी आ जाएंगे। सो इट इज नॉट एन ओवरलैपिंग मैनर, एज वी हैव डिस्कस इन मैथ सेक्शन। मैथ्स में हमने कभी पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड। तो उसमें भी हमने देखा है कि जब कोई 5 रुपए का सिक्का है सपोज, तो उसके ऊपर 5 का ही सिक्का क्या होगा, ओवरलैप होगा। 10 का सिक्का डालने से हो सकता है 10 रुपीज का जो कॉइन्स होगा उससे काफी बड़ा हो जाएगा। सो ओवरलैपिंग का प्रोसेस वी हैव डन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। सो इनमें ओवरलैपिंग नहीं होती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, कॉमा इनमें नहीं होता है, देयर इज नो ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग भी नहीं होती है, और ट्रिपलेट कोड होता है, ऑलवेज फाउंड इन 3 इन नंबर, हमेशा 3 के फॉर्म में होंगे। एंड देयर इज एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है, वी नो दैट वन कोडॉन कोड्स फॉर सिंगल अमीनो एसिड। एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, बट समटाइम्स वन कोडॉन एक्ट एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, यानी एक ही कोडॉन वही अमीनो एसिड्स के साथ साथ किसी और भी अमीनो एसिड्स को कोड करता है, दैट इज कॉल्ड एम्बिग्यूटी। उसको हम एम्बिग्यूटी कहते हैं, जैसे हमारा ट्रिपल यू है, ओके। इसका काम एक कोडॉन को कोड, एक अमीनो एसिड्स को कोड करने के अलावा ये और भी बहुत सारे अमीनो एसिड्स को कोडिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्बिग्यूटी। एंड नेक्स्ट इनमें एक प्रोसेस होता है इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन,
ठीक है। इनिशिएशन का मतलब होता है इट स्टार्ट द प्रोसेस एंड टर्मिनेशन का मतलब होता है इट एंड ऑफ द प्रोसेस। यानी टर्मिनेशन AUG होता है इट कोड्स फॉर मिथाइनिन, यानी ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं मिथाइनिन उसको ये इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, दैट इज कॉल्ड इनिशिएशन कोडॉन। एंड सम 3 टाइप्स ऑफ कोडॉन्स इज आल्सो देयर which are generally also terminate or causing end of the any process, that is called termination codon, जिसमें हम UAA, UAG, ओके एंड UGA do not code for any amino acids। हमने देखा हर एक कोडॉन किसी ना किसी अमीनो एसिड्स को कोड कर रहा है, बट 3 कोडॉन्स आर देयर व्हिच कैन नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड्स। 3 ऐसे कोडॉन है जो किसी भी अमीनो एसिड्स को कोड नहीं करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड नॉनसेंस कोडॉन, इसलिए हम इन्हें नॉनसेंस कोडॉन के नाम से जानते हैं। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे क्लास। नेक्स्ट वीडियो में अब हम और थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, बट टिल वी आर डिस्कसिंग ओनली रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग टॉपिक। वोबेल हाइपोथेसिस, वोबेल हाइपोथेसिस होता है जनरली हम जानते हैं कि AUG ये इनिशिएशन कोडॉन है। इनिशिएशन कोडॉन किसका? मिथाइनिन को ये कोड करता है, मिथाइनिन अमीनो एसिड्स को कोडिंग करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड। लेकिन समटाइम्स वोबेल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि लास्ट वाला का जो G पोर्शन है वो कभी C में या तो U में क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, एंड G में बी रिप्लेस्ड विद C or U, ठीक है। एंड दिस आर द कोडॉन सीक्वेंस, है ना, साइटोसिन, यूरासिन वगैरह जो भी होते हैं। सो अगर क्या होता है कि कभी कभी G जो है हमेशा ये 3rd नंबर पे ही वोबेल हाइपोथेसिस आता है। वोबेल हाइपोथेसिस मींस द रिप्लेसमेंट इट इज गिवन बाय फ्रांसिस क्रेग, जेनेटिक कोड है ना, फ्रांसिस क्रेग, इन विच द रिप्लेसमेंट ऑफ इनिशिएशन कोडॉन एंड जनरली इट टेक्स प्लेस इन अ लास्ट स्टेप, ये हमेशा लास्ट में होता है। इट मींस द G इज रिप्लेस्ड बाय C or U, या तो C से या तो U से जो रिप्लेसमेंट दिखाई देगा दैट इज कॉल्ड वोबेल हाइपोथेसिस। इसको हम वोबेल हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो दिस इज इनफ। नेक्स्ट सेंट्रल डॉगमा, वी हैव डिस्कस्ड दैट DNA doing process in a transcription to form RNA. After that, RNA also forms protein. So different types are generally carried, and that all over the process are called central dogma, जिसे हम central dogma के नाम से जानते हैं। But further, we are going to discuss that human genome project. This project is also called mega project. Why? In sometimes the question may be asked that human genome project is why it's important, because we know that in our body there is a DNA segments are found, and each DNA segments carry lots of nucleotide base pair. So nucleotide human genome project का मतलब था the US company and many more scientists has gathered to find the nucleotide base pair and number of genes are found in the human body. So the approximate data has been given in 13 years. 13 साल के अंदर ये डाटा कवर हो गया था। इसमें ये था इनका जो सबसे पहला एम है, इट इज द एम वॉज टू डिटरमाइन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, यानी हमारे DNA में कितने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं ऑफ कंप्लीट ह्यूमन जीनोमिक, विच वॉज टास्क ऑफ इनॉर्मस मैग्नीट्यूड, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जनरली न्यूक्लियोटाइड्स। सो इनका जो सबसे पहला टारगेट था, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर जनरली फाउंड इन द DNA सेगमेंट्स, एंड ऑल्सो सेकंड टास्क वॉज नंबर ऑफ जीन्स आर फाउंड इन द DNA सेगमेंट्स, नंबर ऑफ जीन्स कितने होते हैं ये सेकंड सेगमेंट था। एंड ऑल ओवर द प्रोसेस आर जनरली बेस्ड ऑन 2 टाइप्स, 2 ही प्रकार के ऊपर जनरली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बेस्ड थे, जिसको US हेल्थ एंड साइंस कम्युनिटी की तरफ से इसको एग्जामाइन किया गया था, ताकि हम लोगों के अंदर पाए जाने वाले नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स एंड द नंबर ऑफ जीन्स आर कैन बी सीन। ओके, सो this is for human genome project. Let's talk some more properties of human genome project. Okay, so human genome project और भी काफी expanded form में थे, so let's discuss in a detailed manner what is the human genome project. So next we have to discuss the next features of human genome project. Okay, so human genome project की हम बात करते हैं, so there is a total of 3 into 10 की power 9 base pairs were to be sequenced. इसका मतलब that project was mega project. Why? Because its totally aim is based on the 2 types. First is to finding the number of nucleotide sequence in DNA, and also finding the number of genes are present in the humans. So that process is totally based on 2 types of function. इनका जो बेस था वो सबसे पहले 2 ही चीजों के ऊपर बेस था, कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बारे में पता लगाना, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कि नंबर ऑफ जीन्स कितने पाए जाते हैं। सो इनमें जो नंबर ऑफ nucleotide base was discovered as 3.2 billion approx, it was not actual data, 3.2 billion, ठीक है।
So it is considered as that. And number of genes may be found as 20,000 to 30,000. If you will prefer the CBSE book, you will get the result of 25 to 30,000. So 20,000 to 30,000 के बीच में इनको number of genes जो है मिले. And after that we have to discuss the bioinformatics, and bioinformatics word is also related with human genome. Okay, so human genome के साथ bioinformatics words जुड़े हुए हैं. Why? Bio means life and informatics means जो life के बारे में information देता है, that is called bioinformatics. Okay, so bioinformatics is a special word which is generally derived from the human genome project, and its aim was to store or giving the computational data and analysis of computational manner without disputing any other sequences. Yani bioinformatics is a branch of science which deals with the study of computational data regarding the genes and nucleotide sequence is called bioinformatics. यानी बायो से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशंस होते हैं उस ब्रांच को ही हम बायोइंफॉर्मेटिक्स कहते हैं, which are generally term related with human genome project. Okay, so that is all about the bioinformatics. So many times this type of questions may be asked in your board exams, like 2 to 3 marks, 2 से 3 marks में questions पूछे जाते हैं. After that we are going to discuss the main and backbone topic of this chapter, DNA fingerprinting. What is the meaning of DNA fingerprinting? First of all, DNA fingerprinting has been given by Sir Alex Jeffreys in 1984 में. Sir Alex Jeffreys नाम के साइंटिस्ट ने DNA fingerprinting को सबसे पहले दिया था. And what was the meaning of DNA fingerprinting? So before it we have to study the dermatoglyphics. हम एक dermatoglyphics के बारे में जानते हैं. It means the case study of the finger, यानी finger की study, पाम की स्टडी या सोल प्रिंट की जो स्टडी होती है इसको हम डर्मेटोग्राफिक्स में जानते हैं. सो इन दिस सेम ईयर बट द प्रोसेस इज डिफरेंट. इसमें क्या होता है, द एनालिसिस ऑफ डाइवर्स पॉलीमॉर्फिक यानी अलग अलग वर्जन्स ऑफ सीक्वेंसेस, द एनालिसिस ऑफ डाइवर्स पॉलीमॉर्फिक सीक्वेंस ऑफ इट डीएनए, डीएनए के सीक्वेंस को ऑफ डीएनए है ना, डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए सेम्स इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. यानी डीएनए के सीक्वेंस को ही डीएनए को प्रॉपर फॉर्म में स्टडी करना, उनके सीक्वेंस को, इट मींस द सीक्वेंस में उनके न्यूक्लियोटाइड्स भी आते हैं. दिस ऑल ओवर द प्रोसेस कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं. सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, द प्रॉपर एनालिसिस ऑफ डीएनए and their sequences of the DNA molecules and the different types of nucleotides base pair is called as DNA fingerprinting. So DNA fingerprinting is totally based on the following 6 points. 6 points में DNA fingerprinting already divided. So next we are going to discuss some properties of DNA fingerprinting. ठीक है, अब DNA fingerprinting हम देखते हैं कि वो होते कैसे हैं. So before it, DNA fingerprinting is generally done by using a blood sample से, सीरम से और भी बहुत सारे जगह से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, यानी जो डीएनए होता है सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए. इट मींस दैट it is the test tube in this blood is totally filled. ठीक है, सो इनमें जो है जनरली ब्लड होते हैं. ब्लड से क्या करते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए. वी हैव टू पिक आउट फ्रॉम द डीएनए फ्रॉम दैट ब्लड पार्ट. इसका मतलब इस ब्लड पार्ट से डीएनए के सेगमेंट्स को बाहर निकाल लेना. एंड आफ्टर दैट डाइजेशन ऑफ डीएनए, यानी हमने इससे क्या निकाल लिया, डीएनए निकाल लिया. सो डीएनए जब हम इससे निकालें, दैट इज कॉल्ड isolation of DNA. After that we have to put them DNA endonuclease. DNA endonuclease डाला जाता है इस पे ऊपर, क्यों, डाइजेशन हो सके. इसका मतलब ये जो बैंड है वो टूट सके. ये बैंड यहाँ से टूट जाते हैं, ठीक है, ये बैंड बीच बीच से टूट जाते हैं, डाइजेशन ऑफ डीएनए. उसके बाद आफ्टर द breaking of these DNA band we have to put in a gel electrophoresis machine. इसके बाद हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में उनको रखते हैं. सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं इनके नंबर ऑफ साइज में जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज होती है वो सबसे ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, जो सबसे ग्रेटर होते हैं उनमें मूवमेंट कम होता है. वाई? बिकॉज दे आर इन अ साइज ऑफ वेट. उनकी या तो साइज के हिसाब से या तो उनके वेट के हिसाब से उनमें जो मोशन होता है वो काफ़ी स्लो होता है. ठीक है, सो डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए स्पेशल टेक्निक विच आर जनरली यूज टू सेपरेट द डीएनए स्टैंड. डीएनए के स्टैंड को सेपरेट करने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं. वी हैव स्टडीड इन बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर. आफ्टर दैट
ट्रांसफर ऑफ डीएनए ऑन नायलॉन मेंबर्स। उसके बाद नायलॉन मेम्ब्रेन से हम क्या करते हैं, एक सीट होती है नायलॉन मेम्ब्रेन को, उसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन के ऊपर जब ट्रांसपोज करते हैं तो इसके जितने भी बैंड्स होते हैं वो उस बैंड में स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बैंड स्टिक हो गए, इसका मतलब ये हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूरा इम्पिटी हो जाता है और हमारे जो नायलॉन सीट थी या जो मेम्ब्रेन थी, ये नायलॉन मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये पूरे आ जाते हैं, क्योंकि वो एज अ फिल्टर होता है। जब उसको किसी के ऊपर प्लेस करते हैं उसके डीएनए के पार्ट्स नायलॉन मेंबर के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं स्टिक होने के कारण। दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ डीएनए आर नायलॉन मेंबर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहां पर हम उसके बाद इनमें प्रोब्स मिलाने जाते हैं। प्रोब्स, व्हाट इज प्रोब्स? प्रोब्स क्या होते हैं? जनरली प्रोब्स आर दी also a DNA parts, but it is a chemically and artificially synthesized in the laboratory. तो probes जो होते हैं ये भी DNA के parts होते हैं, but it is generally prepared by artificially या synthesized in a laboratory. So laboratory में probes को तैयार किया जाता है और उसके बाद probes को इन नायलॉन शीट के साथ मिला दिए जाते हैं। So इनको मिलाने के बाद जो नायलॉन जो हमारे DNA के जो स्टैंड थे वो कैसे स्टैंड हो जाते हैं? जो स्टैंड होता है वो एक्चुअल में डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। सो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में बनने के साथ साथ उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस होती है वो प्रोब्स जब सिंगल स्टैंडर्ड टूटे हुए डीएनए के साथ जब कंबाइन होते हैं तो उनमें डबल की पेयरिंग हो जाती है प्रोब्स के कारण, और उस प्रोब्स की जब डबल पेयरिंग हो जाती है दैट टाइम वी हैव टू see the DNA part in a double stranded. That time we have to understand the DNA act as a double stranded, and that time we have to put the radio labeling of DNA molecules. उस टाइम पे by using the radiation we can find out the sequence of nucleotide. उस टाइम पे रेडियो लेबलिंग के प्रोसेस से हम उसमें sequences of nucleotides के बारे में स्टडी करते हैं. That is all over the process of DNA fingerprinting. ये पूरा का पूरा प्रोसेस DNA fingerprinting था. Okay, so next we are going to discuss some more properties, and the property is importance of DNA fingerprinting. What is the importance of DNA fingerprinting? So DNA fingerprinting में हम लोग क्या करते हैं, we can easily find out the paternity dispute. What is the meaning of paternity? So in movie, in a various types of movie, we have seen that some of the human beings considered that he is the father of that child, but child is also considered as he is the father of some other, ठीक है। जैसे एक ही बच्चे के दो अलग अलग पिता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उस टाइम पे पैटर्निटी डिस्प्यूट्स हम कैसे चेक कर सकते हैं? बाय चेकिंग देयर डीएनए सेगमेंट्स, ठीक है। जैसे एक कोई पेरेंट्स है वो बोलता है कि ये हमारा बच्चा है, और सेकंड पेरेंट्स भी बोलता है ही इज माय सन। सो दैट टाइम वी हैव टू चेक द डीएनए सीक्वेंस, देयर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, पेरेंट्स का भी, दोनों पेरेंट्स का, एक बच्चे का, दोनों का सीक्वेंस चेक करेंगे। जिसका चेकिंग में सीक्वेंस कंबाइन होंगे वो उसका बेटा होगा और अदर का नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड पैटर्निटी डिस्प्यूट को भी क्लियर करते हैं, ठीक है। क्रिमिनल केसेस में भी यूज करते हैं इसका फिंगरप्रिंटिंग का, जैसे मर्डर हो गया, रेपिस्ट वगैरह होता है, इनके भी सीरम वगैरह से यूज करके ऐसे तरह तरह के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से यूज करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज ऑल्सो यूज्ड एज फॉरेंसिक टेस्ट। फॉरेंसिक टेस्ट में सबसे बड़ा रोल प्ले होता है, बिकॉज फॉरेंसिक टेस्ट में जितने भी साइंटिस्ट होते हैं दे जनरली यूज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फॉर फाइंडिंग द एक्चुअल क्रिमिनल। किसी भी क्रिमिनल को एक्चुअल फॉर्म में पकड़ने के लिए वी हैव टू यूज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस। एंड आफ्टर दैट डायग्नोसिस ऑफ सेवरल डिस्प्यूट। Diagnosis of several dispute means it also can check the different types of disease and different types of diagnosis of disputes which are related to paternity and many more things in our world. So DNA fingerprinting is a very important task for all over the biological science, and it's a very important topic because most of the portions are generally comes in board exam. So I request you to please watch the complete video, because this is your last part of molecular basis of inheritance chapter. Next phase we will discuss some more properties of biodiversity of chapter number 15. After that we will complete the 7th chapter, and the chapter name is evolution and heredity, which is totally based on Darwin's. Till then, whatever I have taught you, you have to revise very well. Thank you, students.